I have started the webinar. It's live. Yeah, right, sir. Thank you, sir. But Facebook Live I'll do when you'll intimate me. Facebook Live, I'll do live on Facebook. You'll intimate me. Yeah, sure. I'll intimate you. Shall I start it now? Just a minute, sir. Let them join. And once Constitution Day का start होगा, मैं जी. आपको बोलूंगी, उसके बाद आप start करेंगे, तब मैं बोलूंगी इनको. ठीक है Fine. ना सर? हाँ. Fine. जी सर. सर कुछ स्टूडेंट्स के नाम लूंगी मैं, उनको बस आप अनम्यूट कर दीजिएगा, तो वो अपना ओथ ले लेंगे. ठीक है ना सर? जी. हर्द शाह. Harth, are you ready? Harth, you can unmute yourself. Yeah, just a minute. Sumit sir, you can do live streaming of Facebook and then we'll start. Okay. सर नमस्कार. भाविक सर, आप अपना नाम चेंज कर दीजिए. साइड में नम्रता बजाज रिफ्लेक्ट कर रहा है, रीनेम कर दीजिए. आपने मुझे भेजा, लेकिन आप रीनेम कर सकते हैं सर. सर लाइव स्ट्रीमिंग हो गया फेसबुक का? Just 1 minute. हाँ सर. I'm doing it. जी. हर्ष अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा. फिल्मनाમાંથી સ્પીકર ઘટાડી દો ને, બહુ મોટો અવાજ આવી રહ્યો છે. બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જ છે. भाविक सर, आप देख रहे होंगे आनंद शाह सर हमसे ज्वाइन हो चुके हैं, डिप्टी मामलतदार हैं. एंड वी वेलकम आनंद सर. आपका नमस्कार, आपका स्वागत है इंद्रशील यूनिवर्सिटी में. आप हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार हैं एकेडमिक्स, भाविक गज्जर सर. और हमारे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो चुके हैं. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम पहले आज संविधान दिवस का जो है वो पहले थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे. जो हमारे को दिशा मिले हैं, हमको गाइडेंस मिले हैं यूजीसी और एआईसीटी से, तो हम पहले उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं तीनों लैंग्वेज में बोलेंगे, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में. सो उसको पहले स्टार्ट करके फिर हम आपको हैंड ओवर करते हैं. एंड ऑल स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून. We are going to start this session very soon. In fact, we have started, and I now invite Harth Shah. Harth, you can set on your video, and you can start, stating the fundamental duties. Harth, are you able to hear me? Harth? ओके. सर सुमित सर, उनका वीडियो जो है वो ऑन नहीं कर पा रहे हैं. इस बीच में हर जब तक का ये सॉल्व होए, आई इनवाइट दर्शना मुशनी. सर दर्शना मुशनी को अनम्यूट कर देंगे. फंडामेंटल. हाँ, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं दर्शना. नो मैम, आई डोंट हैव अ ऑप्शन. अच्छा सुमित सर, इनको हम पैनलिस्ट में लेके आ जाएंगे तो शायद हो जाए. अच्छा. Already Darshana is in panelist, but from her end only she is not able to. सर दर्शना के साथ भी यही हो रहा है और हर्ष के साथ भी यही हो रहा है. You can on your video very easily. Just tap on video option, and after that, we can see you. So that option is not given. It's mute chats, raise hand, question and answer, and more. Okay, let me check.
The rest of the students are requested to bear with us. Yes, Hard, are you able to switch on your video? Okay, then you can start, Hard. Darshana, now check it, please. Students. Darshana? Yes, sir. Now I have the option. Yeah. Hard, you be in touch with Sumit, sir. Yeah, Darshana, you can start. And then we will take you also in the next turn. Yes, Darshana. Fundamental duties. It shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures, to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and adjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to high levels of endeavor and achievement, who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, what between the age of 6 and 14 years. Thank you, Darshana. Hard, are you able to set on your video? Yes, Hard, please. Hard, we are not able to hear you. Please unmute yourself. Yes, Hard, we are not able to hear you. Yes, please. No, we are not able to yet hear you. Yeah, your video is okay. Yeah, please. I'm sorry. Yeah, start. I'm sorry, Hard, we are not able to hear you. Just check. In the meanwhile, I'll take some other. Okay. Yeah. Just check. Yeah. Sumit sir, we have Soham Bhakti Mohan Patra. If you can, yeah, Soham Bhakti. Soham, your video is not on. Yeah, now it's on. So yes, so. Okay, फंडामेंटल ड्यूटीज इन हिंदी। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उससे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उनके रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। Okay, thank you, Soham. If we are connected with Sandeep Parmar. संदीप परमार आप हैं सर? सुमित सर थोड़ा सा हेल्प करेंगे? संदीप परमार वो गुजराती में बोलेंगे। I'm not able to find Sandeep here. अच्छा, मयंक है? Yeah. Mayank, kindly open your camera and unmute yourself. मयंक गुजराती में आप बोल पाएंगे? मयंक पटेल। Yeah. यस मैम। या मयंक प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और आप गुजराती में बोल लीजिए। अनम्यूट करिए मयंक, अपने आप को अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है। हाँ जी, अब बोलिए आप। मयंक आप म्यूट हो जा रहे हैं बार बार, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए मयंक। लगता है हमारा मयंक के साथ में कनेक्शन निकल गया है। हर्ष आप कनेक्टेड हो गए हैं ठीक से, तो फिर आप बोल दीजिए। हाँ हर्ष, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही हर्ष, कुछ टेक्निकल ग्लिच है ही है। ठीक है, हम देखते हैं कि फिर कब कनेक्ट हो पाते हैं। अभी बिना किसी देरी किए जिस पर्पस के लिए हम लोग असेंबल हुए हैं, वो पर्पस जो है वोटर रजिस्ट्रेशन अवेयरनेस के संबंध में कलेक्टेड ऑफिस से हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद शाह जी, और वो जो है आपको कुछ जानकारी देंगे और प्लीज आप उसे ध्यान से सुनिएगा। आनंद शाह को मैं इनवाइट करती हूँ कि आप प्लीज हमारे स्टूडेंट्स को संबोधित करें। थैंक यू मैडम। मैं जो इन्फॉर्मेशन दूं इससे पहले हमारे साथ जो डेप्यूटी मामलतदार है धर्मेंद्र सिंह खेर, वो थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे पहले। सर थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, थोड़ा आवाज कम है। ओके, आ रही है आवाज? हाँ ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है जी सर। ओके, तो સૌથી પહેલા તો સૌને બંધારણ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। सर थोड़ा हिंदी और गुजराती दोनों मिक्स करिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे हिंदी और इंग्लिश वाले भी हैं, हिंदी और गुजराती मिक्स करके बोलिएगा जी। कोई बात नहीं। तो सबको બંધારણ दिन की खूब खूब शुभेच्छा है। और इलेक्शन कमीशन और मेहसाणा जिला चुनावी तंत्र और 24 कड़ी विधानसभा की ओर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जो मतदाधिक संक्षिप्त सुधारणा कार्यक्रम चल रहा है 2021 का, इसी के संबंध में ये वेबिनार रखा हुआ है।
मेहसाणा जिला तंत्र और 24 कड़ी विधानसभा की ओर से। तो इसमें हमारे साथ जो मौजूद हैं श्री आनंद शाह, डेप्यूटी मामलतदार, वो सभी युवा मतदारों को ऑनलाइन कैसे एप्लीकेशन करते हैं, उनमें क्या क्या क्षतियां होती हैं जो हम नहीं करके एप्लीकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हैं। और इस जो महातंत्र है हमारा भारत, उसमें जो लोकशाही है उसकी चुनकनी के अंदर वो कैसे अपना सहभागी कर सकते हैं, वो सब आपको हमारे साथ जो मौजूद है आनंद शाह, डेप्यूटी मामलतदार, वो आपको समझाएंगे। इस समय हमारे पास जो युवा मतदार मौजूद हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ और श्री आनंद शाह को अब कहता हूँ कि वो आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं। तो श्री आनंद शाह, आवाज ठीक आ रही है ना? आवाज आ रही है ना मैडम? हाँ जी सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम मामलतदार ऑफिस कड़ी से आए हुए हैं इधर, और ये जो अभी मध्य रैली का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नई सुविधा उपलब्ध की गई है, NVSP साइट, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। आप सबको लिखना हो तो लिख लीजिए, वो साइट पूरे उसका पूरा नाम क्या होता है, www.nvsp.in। ये साइट पे जाके आप आपका जो जिनका 18 साल पूरे हो चुके हुए हैं वो अपना मध्य रैली में नया नाम दाखिल करने के लिए इस साइट पे जाके सर आप एक बार रिपीट करेंगे वो साइट, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगी। www.nvsp.in। N? हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। हाँ जी सर। दिखा? नहीं सर, आप किसी की हेल्प ले लीजिए। फिर से एक एक वर्ड बोल दीजिए, मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ। N फॉर नेशनल। N फॉर नेशनल जी। ये स्क्रीन ओके, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है ना? हाँ जी सर, अब दिख रहा है। NVSP.in। हाँ जी सर। ये साइट पे जाएंगे ना तो ये स्क्रीन खुलेगा आपको, नेशनल वाटर सर्विस पोर्टल वाला। इसमें आप रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू इलेक्टर, रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज, ये रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू इलेक्टर है ना, उसमें आपको मध्य रैली में नया नाम दाखिल करना हो ना तो रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू इलेक्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करेंगे, इसके पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इधर से ये लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे ना तो एक स्क्रीन आएगा नया लॉगिन वाला। उसमें आपको पहले न्यू यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। कोई भी इसमें यूजर बना सकता है और यूजर बना के लॉगिन करके नया फॉर्म भरना हो, या आपकी फैमिली में कोई किसी की डेथ हो गई हो और उसका मध्य रैली में नाम चालू हो और वो कमी करवाना हो ना तो उसके लिए फॉर्म 7 भरना पड़ता है। फिर आपकी फैमिली में जो आपके मम्मी पापा है, आपके बड़े भाई है, बहन है, उनका मध्य रैली में जो इलेक्शन कार्ड है ना उसमें कोई भूल हो या कोई हो और उसको सुधारना हो तो उसके लिए फॉर्म 8 भरना पड़ता है। और आप इधर हाल जो राजपुर या कड़ी या मेहसाणा में रहते हैं और उनको अपना एड्रेस बदल के अहमदाबाद ले जाना है मेहसाणा से, तो उसके लिए आपको एक उसमें ऑप्शन आता है माइग्रेशन फॉर इलेक्टर्स, वो फॉर्म भरना पड़ेगा। और दूसरा एक ऑप्शन है कि आप कड़ी विधानसभा है, अभी राजपुर में कड़ी विधानसभा लगती है बराबर, आपको राजपुर कड़ी विधानसभा में अंदर नाम चेंज करवाना है, राजपुर से आपको ऊंटवा ले जाना है तो आपको 8 का फॉर्म भरना पड़ेगा। उसको इंग्लिश में 8A बोलते हैं और गुजराती में 8 बोलते हैं। ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको क्रिएट करने के लिए पहले यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपका मोबाइल नंबर या एपिक नंबर डाल के ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यूजर नेम क्रिएट हो जाए, उसका पासवर्ड
क्रिएट करके आप यहाँ पर लॉग इन करके आगे अंदर प्रोसेस कर सकते हैं। मैं एक करके दिखाता हूँ आपको डेमो। सबको समझ आ रहा है ना? सर सबको म्यूट किया हुआ तो वो बताएंगे नहीं, वो चैट बॉक्स में आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं अपना। लास्ट में हम वो सेशन रखेंगे। हाँ सर, यस बोला है बच्चों ने। उनको ये लॉगिन पासवर्ड वो बनाना ही होता है। अगर ना हो तो आप रजिस्टर करने जाओगे तो वो सिर्फ आपका जो मोबाइल नंबर होगा उसमें OTP आएगा। ये लॉगिन करोगे उसके बाद ऐसा स्क्रीन खुलेगा। आपको कोई नया इंक्लूड करना है आपका नाम, तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। फ्रेश इंक्लूजन पब्लिक एनरोलमेंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो फॉर्म खुलेगा उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये फॉर्म भरेंगे तो आपका नया नाम दाखिल कर सकते हैं। ये सब ऑनलाइन ही होगा। फिर आपको इधर से कुछ दूसरी जगह पर आपका नाम ले जाना हो तो माइग्रेशन टू अनदर प्लेस, ये पर क्लिक करके आप जो ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा वो भरना पड़ेगा। फिर आपका नाम अभी मध्य रेडी में चालू है और उसमें कोई करेक्शन करना है कि आपका नाम, मेरा नाम आनंद कुमार है लेकिन मेरे को आनंद ही रखना है, शाह आनंद कुमार अमृतलाल ऐसा नाम है मेरा, लेकिन मेरे को मेरा नाम कुमार, नाम में कुमार नहीं चल रहा, खाली आनंद ही करना है, या मेरी बर्थ डेट हो उसमें कोई क्षति हो या भूल हो और उसको सुधारना हो तो करेक्शन इन पर्सनल डिटेल में जाके आप सुधार सकते हैं। आपका फोटो, अभी जो इलेक्शन कार्ड है उसमें जो फोटो है वो बहुत पुराना है और आपको अभी नया डालना है तो इधर जाके आप नया फोटो अपलोड करके फॉर्म भर के कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है डिलेशन ऑफ एनरोलमेंट। इसमें आप अभी आपका नाम 2 जगह पर चल रहा है, मेहसाणा में भी चल रहा है, अहमदाबाद में भी चल रहा है, तो आपको मेहसाणा में से डिलीट करवाना हो तो डिलीशन ऑफ एनरोलमेंट में जाके फॉर्म नंबर 7 भर के आप कर सकते हैं। या आपकी फैमिली में आपकी बहन हो, उसकी शादी हो गई और उसको यहाँ से दूसरी जगह पर उसका नाम ले जाना है तो यहाँ पर फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, और जो नई जगह है वहां पर वो जाके फॉर्म 6 भर के वो अपना नाम यहाँ से वहां ले जा सकते हैं। फिर आपका जो चुटनी जो इलेक्शन कार्ड है वो अभी क्या है कि जीजे सीरीज वाले जो पुराने इलेक्शन कार्ड है ना वो जीजे सीरीज वाले हैं, तो वो अभी बंद, इलेक्शन कमीशन ने बंद किए हुए हैं। और उसका जो अभी आप ये रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्टर्स करके फॉर्म भरेंगे ना तो आपको जीजे सीरीज वाला कार्ड को नया नंबर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की ओर से। इससे आप नया फॉर्म, नया नंबर ले सकते हैं इलेक्शन कार्ड का। फिर आपको आपका मध्य रेडी में जो नाम चल रहा है वो आपको कहाँ पर चल रहा है वो नहीं पता है तो आपको सर्च इन इलेक्टोरल रोल ऐसा ऑप्शन बता रहा है स्क्रीन ऊपर, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। ये सर्च करके आपको आपका और आपकी फैमिली का कौन सी विधानसभा में नाम चल रहा है, कौन से एड्रेस पर चल रहा है, वो सभी माहिती यहाँ से मिल सकती है आपको। ये फ्रेश इंक्लूडमेंट वाला में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसा ऑप्शन आएगा, इसमें आई रिसाइड इन इंडिया। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसी सुविधा उपलब्ध की है कि भारत के बाहर भी जो रह रहे आउटसाइड ऑफ रेसिडेंस इंडिया वो भी यहाँ पर मतदार रेडी में नाम अपना दाखिल कर सकते हैं, इलेक्शन कार्ड यहाँ पर अपना चालू करवा सकते हैं। उसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। हम तो इधर ये पहला ऑप्शन आता है ना, आई रिसीड इन इंडिया, इनका हम इधर ही रह रहे हैं, हम बाहर वाले नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से यहाँ गुजरात ऐसा ऑप्शन है, गुजरात सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट देना पड़ेगा आपको।
फिर आगे ये स्क्रीन खुलेगी, इसमें आपका जो जिला है, जिस जिले में रहते हैं वो जिले यहाँ पर पसंद करना पड़ेगा। मैं गांधीनगर रहता हूँ तो गांधीनगर सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हाउस नंबर, पसी हाउस नंबर वाइज जो सब एड्रेस है आपके वो फिलअप करने पड़ेंगे। आगे दूसरे ऑप्शन खुलेंगे। आपको ये जो फॉर्म नंबर 6 भर रहे उसमें आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है और आपकी जो एज प्रूफ है वो भी देना पड़ता है। एड्रेस प्रूफ में इतने प्रूफ चलते हैं: इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, रेशन कार्ड, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल, पोस्ट लेटर, मेल डिलीवर थ्रू इंडियन। इतने सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, ये इसमें से कोई भी एक देना पड़ता है। और उसके अलावा आपको आपकी बर्थ डेट का पुरावा देने के लिए भी एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। उसमें आपको आपकी स्कूल कॉलेज का LC, आपका बर्थ सर्टिफिकेट या पान कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें से कोई एक भी देकर आप आपका नाम का पंजीकरण करवा सकते हैं। फिर ये सब, और एक आपका फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना पड़ता है। और ये सब अपलोड करके फॉर्म भरेंगे तो फिर आपका एक सबमिट करेंगे ना तो एक नंबर मिलेगा। ये नंबर आपको मोबाइल नंबर आपने जो दिया होगा उस पे वो SMS आ जाएगा और उससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी आगे क्या प्रोसेस हुई, वो भी सिस्टम में दिखाएगा। वो स्टेटस के साथ आप चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो कंस्टिट्यूएंसी में है वहां पर कौन BLO है, वहां पे इलेक्टर ऑफिसर कौन है, वो सभी यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये ट्रैक स्टेटस आता है ना, यहाँ पर आपका जो रेफरेंस ID आएगा ना वो डाल के आप आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं। और आगे अब धर्मेंद्र सिंह खेर समझाएंगे। ऑनलाइन तो समझा रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन समझ। जो आनंद शाह ने समझा कि NVSP पर आप सब लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपके आसपास भी जो लोग हैं समझाइए कि ऐसे ऑनलाइन ही जाए, क्योंकि इस कोरोना काल में ये हमारे लिए सुविधा बहुत अच्छी है। और जो लोग जिनको सुधारा करवाना है वो भी करवा सकते हैं 8 नंबर भर के। ये सब आपको आनंद शाह ने ऑनलाइन समझा दिया। अब इसका थोड़ा ऑफलाइन भी होता है, तो फॉर्म से होता है। तो इनका जो ऑफलाइन फॉर्म के जो नमूने हैं वो आपको सिर्फ समझ के लिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे आप ऑनलाइन भरते हैं वैसे ही ये ऑफलाइन भी है। जो हमारे यहाँ जो शेड्यूल है मतदार सुधारणा कार्यक्रम 29/11 को, 6 दिसंबर को और 13 दिसंबर को संडे के दिन हर बूथ जहां वोट करने जाते हैं वहां पर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर वहां बैठे होंगे। वहां पर भी आप ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कोरोना काल में वहां जाना थोड़ी उनको वहां रखना, हम ये प्रिकॉशन है वो रखेंगे। और अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि हम युवा मतदार, हमें वेबिनार इसीलिए रखा है कि युवा मतदार ये समझे कि ऑनलाइन ये सुविधा उपलब्ध है, तो उसका हम भरपूर फायदा उठाए। और हमारे आसपास भी कोई है तो उसे समझाए कि NVSP.in पर हमारे इलेक्शन कमीशन ने जो सुविधा उपलब्ध कराई उसका मैक्सिमम उपयोग करें।
और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डालेंगे उसके बाद BLO आपके घर आएगा, वो आपका वेरिफिकेशन भी करवा लेगा कि भाई ये नाम आपका है, आपका फोटो है, ये सही है, कुछ अगर गलती है, कुछ सुधारना है तो वहीं पर आप सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद वो वेरीफाई हो जाएगा। जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी तो आपने जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है वहां पर आपको SMS ही आ जाएगा डिलीवर कि भाई आपकी ये एप्लीकेशन नंबर एक्सेप्ट हुई है। उसके बाद जब हमारा जो मतदाता ई-रोल है वो प्रसिद्ध होगा, उसके बाद आपको बूथ लेवल ऑफिसर हमारे जो हैं BLO जिसे हम कहते हैं, वो आपके घर आके ही आपको इलेक्शन कार्ड दे जाएंगे और आपकी साइन भी ले लेंगे। इसलिए जो पूरी प्रक्रिया ECI ने ऑनलाइन बनाई है NVSP की, वो उसका आप फायदा उठाइए, या फिर आपके आसपास जो लोग भी उसे ये समझाइए कि ऐसी परिस्थिति में बाहर जाने से भी अच्छा ये तरीका है कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन अर्जी कर सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन मतदाता में हो सकता है। तो आप प्लीज, आप भी अगर आपकी 18 साल हो गई हो उम्र, तो इस कार्यक्रम में आपका रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। आपके आसपास भी जो लोग भी हैं उसका भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो 1/1/2021 तक जिसको 18 साल पूरे हो गए हैं वो इस मतदाता में अपना नाम रजिस्टर करा सकता है। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नमूना नंबर 6 है। आपको जो आनंद भाई ने NVSP पर समझाया ये यही है, लेकिन ये ऑफलाइन है, सिर्फ ये ऑफलाइन है नीचे का। तो इसमें जो भरना है ओवरव्यू में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपका जो विधानसभा होगी वो आगे तो आप लिख देंगे, मतलब बूथ लेवल ऑफिसर के थ्रू या फिर जिस ERO आपको लगते हैं ये ERO है वहां पर भी जाके आप भर सकते हैं। यहाँ पर नाम लिखना होता है, आपका पूरा नाम गुजराती में, पूरा नाम अंग्रेजी में, फिर अटक जहाँ नाम लिखा है सिर्फ नाम ही लिखना है आपका। ये महेश है तो महेश, महेश कुमार है तो महेश कुमार। वैसे ही अटक है तो सिर्फ सरनेम ही लिखनी है। उसके बाद आपके संबंधी, मतलब आपके पिता की, पति, जो भी है वो नीचे टिक करना है और उनका नाम लिखना है। फिर कितनी आपकी जन्म तारीख है वो सब लिखा हुआ है। उसके बाद जो आपका रेसिडेंशियल मतलब एड्रेस है वो लिखना है, और उसके बाद भी वही एड्रेस होगा जहां पर आप हैं। और आपके पास अगर पहले से कोई है मतदार जो उनके पास एपिक नंबर है तो उसकी विगत यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर, अच्छी बात है आप रजिस्टर करवा लो, तो क्योंकि कभी ECI में आगे से कोई प्रोग्राम होगा तो उनको सरलता होगी आपको SMS के थ्रू जानकारी देने के लिए, और फिर ये भी एप्लीकेशन नंबर भी आपके अंदर SMS के रूप में आ जाएगा। उसकी पूरी प्रोसेस आपके अंदर आ जाएगी, आपको कहीं पे भी पूछताछ करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। और सब डिटेल ऐसी लिखी हुई है कि कहाँ जन्म हुआ था, आप कहाँ रहते हैं, कहीं पर नाम है, और फिर जिन लोगों की उम्र 21 साल से ज्यादा हो गई है, अभी तक उनका इलेक्शन कार्ड नहीं है, तो वो भी अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन उनको एक एकरार करना पड़ता है कि हमें 21 साल से ऊपर के हैं और हमारे पास अभी तक कोई इलेक्शन कार्ड नहीं, ऐसा एक एकरार देना पड़ता है। उसके बाद वो स्थल है, तारीख और अर्जदार की साइन हो जाएगी। फिर पूरी विगत है यहाँ पर आपकी, वो तो ऑफिशियल यूज के लिए कर लेंगे तो सब। और फिर आपको ये पहुंच मिलती है। आप जहां बूथ लेवल ऑफिसर या मतदान नोंदणी अधिकारी के कचेरी में जाते हैं, मददनीश मतदान नोंदणी अधिकारी के बाद, वो आपकी फॉर्म्स ले लेगा। उनके अंदर आपको मतलब आपकी जन्म तारीख का पूरा देना पड़ेगा, आपके जो रेसिडेंस है आपका जहाँ का, उसका प्रूफ देना पड़ेगा। वो दोनों पूरा आप दे देंगे, और पासपोर्ट साइज का फोटो वहां देंगे तो वो दे देंगे। और ये आपकी जब पहुंच दिख रही है यहाँ पर, ऐसी पहुंच आपको साइन करके जो भी वहाँ बैठे हैं वो आपको पहुंचा देंगे, आपको दे देंगे। उसके बाद फॉर्म 7 हम समझ लेते हैं। फॉर्म नंबर 7 इसलिए भरा जाता है कि अगर मतदाता में किसी का नाम है, अगर वो डेथ हो गई, उनकी मरण हो गया है, तो उसका नाम मतदाता में से कमी करना पड़ता है। अगर वो कहीं और चले गए, स्थानांतर कर गए हैं, अगर आप हैं, आप यहाँ से इस विधानसभा से किसी और विधानसभा में जा रहे हैं,
अगर यहीं पर ही आपको रहना है, कड़ी ही विधानसभा में है और एक गांव से दूसरे गांव या सिटी जा रहे हैं, तो आपको 8 क भरना पड़ता है। लेकिन ये 7 नंबर सिर्फ और सिर्फ कमी करने के लिए है। यहाँ से आपका नाम डिलीट होगा, आपको फिर ये पहुंच उसके साथ जो होती है वो ले जाएंगे, उसके साथ जोड़ देंगे तो ये कमी हो जाएगा और वहाँ नाम चालू हो जाएगा। तो ये नमी कमी जिसका नाम करना है, जो अर्जदार है, जो अर्जी कर रहा है, इसकी विगत है, और फिर जिसका नाम कमी करना है उसकी विगत आ जाएगी। उसी एपिक भाग नंबर और एपिक नंबर सब लिखना होता है। उसके बाद लास्ट में आप जिस बीएलओ के पास गए हैं या फिर जिस ऑफिस हमारी जो मतदान नोंदणी अधिकारी या फिर असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन है उनके पास गए हैं, तो आपको फिर ऐसी पहुंच वो भी दे देंगे कि ये कमी हो चुका है यहाँ से नाम। और उसके साथ आपको वो जो प्रूफ देने हैं वो डेथ सर्टिफिकेट है, या फिर आप स्थानांतर कर गए हैं तो वहाँ का रेसिडेंशियल एड्रेस का पूरा और आपका एपिक कार्ड का जेरॉक्स देना पड़ता है। तो ये 7 नंबर है जो नाम कमी करने के लिए। उसी तरह 8 नंबर, जैसे कि एनवीएसपी में भी आपको आनंद शाह ने समझाया कि भाई आपका कोई विगत है, एपिक आपके पास ऑलरेडी है, आपका है, आपके घर का किसी सदस्य का है, या आजू बाजू में कोई है जिसका ऐसा सुधार करना है, तो आप युवा होके उनको ऐसी हेल्प कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हम समाज में लाने की कोशिश भी कर सकते हैं उस दौरान। तो जो 8 नंबर का है, तो वहाँ पर उनको जो अगर फोटो सुधारना है तो यहाँ पर जो जगह दी हुई है वहाँ फोटो लगा देना का और फोटो का प्रूफ देना पड़ता है। फिर उनका नाम जो है, नाम सुधारना है, यहाँ पर जो निशानियाँ दी हुई है कि आपको नाम सुधारना है, फोटोग्राफ सुधारना है, संबंधी का नाम सुधारना है, उम्र भी सुधारना है, जाति, जन्म तारीख, ये सब सुधारने के लिए आप 8 नंबर बढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ये ऑफलाइन का नमूना है, सिर्फ ऐसा ही ऑनलाइन का होता है। और फिर जिस जगह जाएंगे आपको फिर से वहां से पहुंच मिल जाएंगी। एक मिनट आपको पहुंच दिखा देता हूँ। ऐसी स्वीकृति और पहुंच रसीद है, वो आपको समझा दिया। जैसे मतदान नोंदणी अधिकारी या मददनीश नोंदणी अधिकारी जो हैं, या फिर बूथ लेवल ऑफिसर है जो संडे को बैठने वाले हैं, या फिर उनके पास आप जाएंगे तो आपको ये पहुंच भी, रसीद भी मिल जाएगी कि आपके पास ये एप्लीकेशन हमने स्वीकार कर ली। उसके बाद है 8 का एक ही विधानसभा में, ये बहुत जरूरी है याद रखना, एक ही विधानसभा में आपको अगर 24 कड़ी विधानसभा में ही कहीं पर भी रहते हैं, 300 मतलब जो 111 गांव है उसमें कहीं भी रहते हो, 307 बूथ में से किसी भी बूथ पर आप रहते हो, और एक बूथ से दूसरे बूथ, यानी कि अगर मेरा नाम कड़ी सिटी में चालू है और मैं थोड़ गांव में रहने जाता हूँ और मुझे वहां ट्रांसफर करना है मेरा एपिक कार्ड, तो मेरे लिए ये 8 का ही भरना बेहतर ऑप्शन है, 8 का ही भरना है, जिससे मेरा नाम कड़ी सिटी में से डिलीट होके वही एपिक कार्ड, वही डिटेल सीधी थोड़ के जो मतदान मथक है उसमें चले जाएगी। और उसके अंदर मुझे विगत ये सब भरनी है, पासपोर्ट साइज का फोटो, मेरा नाम, मेरा एपिक नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैकल्पिक है, आप लिख दो तो अच्छी बात है, उसकी एंट्री भी हो जाती है, जिससे आपको आगे चलकर थोड़ी सुविधा मिल सकती है। और जहां आप रहने जा रहे हो उसका पूरा एड्रेस लिखना है, उसका पुरावा भी आपको शामिल करना है, जिस बूथ लेवल ऑफिसर में आप जाते हो, या फिर ऑनलाइन भरते हो तो ऑनलाइन वो अपलोड ही करना है। आपको ऑनलाइन भरने में कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको या तो मतदान नोंदणी अधिकारी ऑफिस, मददनीश मतदान नोंदणी अधिकारी ऑफिस, या फिर बूथ लेवल ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। इसमें ऑनलाइन अगर आप करते हो तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, हमारे बूथ लेवल ऑफिसर आपकी वेरीफाई करने के लिए आपके घर आ जाए। और ये कोरोना की स्थिति में ऑनलाइन बेहतर ऑप्शन है। और आपको फिर से भी मैं दिखा दूं कि 8 का भी एप्लीकेशन भी आप जहां देते हैं तो वहीं पर भी आपको ये रसीद मिल जाती है, साइन की हुई, आपके नाम, नंबर और जो रसीद नंबर आती है वो सब। तो इस तरह ये थोड़ा ऑफलाइन का आपको समझ दे दिया। और बाकी तो हमारा पूरा ये वेबिनार था इस बात पर फोकस था कि आप युवा मतदार हो, आप टेक्निकल जानते हो, आप और लोगों की भी मदद कर सकते हो,
तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप युवा मतदार जो हमारे कैंपस एम्बेसडर भी है कई लोग, या फिर जिस यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, सभी में चाहता हूं कि आपका अगर अभी रजिस्ट्रेशन बाकी है और 1/1/2021 को आपके 18 साल पूरे हो गए, तो आप पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए और फिर बाकी को भी प्रोत्साहन कीजिए कि ऐसे हमारा जो मतदान नोंदणी सुधारणा कार्यक्रम चालू ही है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप 365 दिन चालू ही होता है, 24/7। कभी भी किसी भी वक्त आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हमारे BLO ऑफिसर आपके पास आएंगे, आपको वेरीफाई भी करवा लेंगे, चेकलिस्ट भी आपको बता देंगे कि ऐसा है, आपकी साइन भी ले लेंगे। तो पूरा वेबिनार हमारा इस बात पर है कि आपका रजिस्ट्रेशन करवाएं, आपके आसपास पे भी जो भी 18 साल पूरे हुए उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। यदि किसी का सुधारना है, किसी को मतलब कमी करवाना है, तो उसमें भी आप ऑनलाइन बैठे उनको मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। उनके साथ ये हमारा जो हमने आपको समझाया वो आप उनको समझा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी चेन चलेगी। तो मैं आशा करता हूं कि इस चीज से हमारे युवा मतदारों बहुत हो जाएंगे और आगे चल के हम धीरे धीरे ऑनलाइन की ओर बढ़ते हैं। तो बस सेमिनार में अब किसी को कुछ क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनीवन? सर एक प्रश्न आया था एक स्टूडेंट का कि इसमें फीस कितनी लगती है? नहीं, इसमें कोई फीस नहीं है। ऑफलाइन भी आप जाते हैं या ऑनलाइन भी जाते हैं, इस एप्लीकेशन के लिए कोई फीस नहीं है, पूरा फ्री ऑफ सर्विस है, मतलब कोई चार्जेस नहीं है। कहीं पे भी ऑनलाइन भी आप जाते हैं तो भी कोई फीस नहीं भरनी, ऑफलाइन भी अगर आप जाते हैं तो कोई ऑफिसर या किसी ऑफिस में आपको कोई चार्ज देना नहीं है। आपको फ्री ऑफ एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, वहां से एप्लीकेशन भी वहां पे होती है, कोई प्रिंट करके भी नहीं ले जाने की जरूरत आपको सिर्फ आपके जो डॉक्यूमेंट है वो जेरोक्स करवा के ले जाने पड़ते हैं। इसमें मैडम जी, इसमें कोई फीस तो नहीं लगती, लेकिन ऐसा है कि आपके पास अभी इलेक्शन कार्ड है जी, और उसमें आप अभी कोई करेक्शन करवाते हैं, जी, बराबर, तो उसके बाद जो नया इलेक्शन कार्ड आएगा ना, तो वो आपको प्रिंट निकालनी पड़ेगी, वो नया निकालना पड़ेगा और वो CHC सेंटर पे मिलता है, वहां पे फीस लगती है। लेकिन ये नया करवाते हैं ना, नए में तो कोई फीस नहीं लगती। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग वाला है उसमें अगर कुछ चेंज कराना है तो उसमें लग सकते हैं। वो कितना रुपए से कितना लगता है ताकि लोग तैयारी करके जाएं? 30 रुपये लगता है उसमें। वो इलेक्शन कमीशन का जो एजेंसी है वो हमारे वहाँ कड़ी में भी है, मेहसाणा में है। आप जहाँ भी जाते हो वहां से निकल जाता है आपका एपिक कार्ड। वो लगभग अभी उनकी फीस 30 रुपीज है। ओके, 30 रुपीज है, नॉमिनल है, क्योंकि आइडिया पता पड़े, कई लोगों को नहीं रहता और बहुत पैसा ले लेते हैं। सर इसका ये है कि ये जो आपने साइट बताई थी वो हम किसी भी गुजरात के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हम उसको लॉगिन करके उसमें कर सकते हैं ना, जो आपने साइट बताई ऑनलाइन की? गुजरात नहीं, आप आखिर पूरे इंडिया में से कर सकते हो वहां पे आप। ओके सर, अभी जी स्टेट सर, ये जी जो सर, साइट बताई हमने nvsp.in, बराबर? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हमने टाइप कर दिया है सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। .nvsp.in, हाँ जी, हाँ सर, हाँ, हाँ जी सर, हाँ सर। एक और क्वेश्चन आया है कि फोटो या डॉक्यूमेंट जो है वो फोन में से मतलब जैसे फोन से ही हम वेबसाइट पे जाके और फोटो या डॉक्यूमेंट जो है फोन से ही हम अपलोड कर सकते हैं कि कंप्यूटर में से ही स्कैन करके करना पड़ेगा? वो एक क्वेश्चन है। वो मोबाइल से ही हो जाता है। ओके, पर्टिकुलर जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो, उसको JPG फॉर्मेट में ही डालना होता है। सिर्फ यही हमें सावधानी बरतनी है कि अगर वो फोटो जो भी पासपोर्ट साइज का अपलोड करे वो पूरी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सेल्फी डाल दे, सेल्फी नहीं चलता जी है ना। सर, ये ऐसा कोई मतलब वो उसमें चेहरा नहीं दिखता हो ऐसा फोटो जी नहीं, सर, पूरा जी सर, कवर होना चाहिए। मतलब जो पासपोर्ट साइज का होता है, हमारे जो कंधे तक का होता है ना फोटो, जी सर, पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। और फिर जो डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं, जैसे कि हमने जो एप्लीकेशन की जो डेट ऑफ बर्थ है,
तो हाँ जी। उसका पुरावा जो भी है वो पर्टिकुलर मतलब दिखना चाहिए। जैसे हम ऑनलाइन खोलते हैं, अगर कोई बैठा है ERO में तो उसे पर्टिकुलर दिखना चाहिए कि ये इसकी उम्र ये है, ये सही है, डॉक्यूमेंट सही है। फिर जी। जो एड्रेस का पुरावा दिया हुआ है, प्रूफ दिया हुआ है, तो वो भी दिखना चाहिए कि भाई हाँ ये यहाँ रहते हैं। तो ऐसे थोड़ा पूरा दिख जाएगा तो फिर आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट नहीं होगी या फिर इनकम्प्लीट नहीं होगी, कि जिससे हमें BLO को कहना पड़ेगा भाई इसका एड्रेस बराबर दिख नहीं रहा है, तो जी आप जी जाके ले लीजिए। ऐसा ना हो तो थोड़ा सुविधा रहती है, मतलब थोड़ा प्रोसेस जल्दी हो जाता है ऐसा। जी ये जी जो डॉक्यूमेंट सर। आप हाँ जी सर। ये जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे ना, जी तो सर। वो JPG फॉर्मेट में ही करना पड़ेगा, PDF नहीं चलेगा उसमें। ओके सर, डॉक्यूमेंट सारे PDF फॉर्मेट में? नहीं, JPG में चलेंगे, PDF अच्छा, में। डॉक्यूमेंट्स भी, खाली डॉक्यूमेंट्स भी JPG, फोटो भी JPG में, ओके, PDF फॉर्मेट में नहीं रहेगा। ओके, एक और सर क्वेश्चन है कि समझो हमारा ये प्रोसेस हो जाता है, पूरा सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, तो हमारा वोटर ID जनरेट भी हो जाता है, तो उसका प्रिंट कैसे करेंगे हम? नहीं, देखिए आपको थोड़ा सुधार करना चाहूंगा। मतलब आप ऑनलाइन जो करते हैं उसमें एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, एपिक नंबर नहीं। ओके। एपिक नंबर जनरेट वो नहीं होता। आपका जो एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो एप्लीकेशन नंबर आएगा, वैसे आपको जरूरी है प्रिंट निकालना, तो वहीं पर स्क्रीन पर होता ही है वो, तो आप PDF बना के या कहीं से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। जी सर। और अगर आप प्रिंट नहीं निकालते फिर भी आपके मोबाइल में SMS तो आ ही जाता है कि इस जी। नंबर की एप्लीकेशन है आपने जी। पूरा वाला सब अपलोड कर दिया, तो एप्लीकेशन जैसे लेकिन वोटर ID कार्ड जो है वो घर पे ही आएगा, मतलब बाय पोस्ट ही आएगा? वो वेरीफाई हमारे वो जो देखिए आपको एप्लीकेशन आ गया, ERO वहां से BLO को असाइन करेंगे, वहां चेकलिस्ट निकलता है, वो उनके घर ही जाएंगे, समझे? वो घर अगर वो है उनके सदस्य, उनको बता देंगे कि भाई ये देखिए आपने एप्लीकेशन की है, उसमें आपका फोटो ये आएगा, आपका नाम ऐसा आएगा, आपके संबंधी का नाम ऐसा आएगा। इसमें ओके, वेरिफिकेशन भी आएगा। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। लगता है कि करेक्शन करवाएं तो आप BLO के पास ही वहां करवा देंगे सुधार। वो ओके। फिर से ERO या AERO ऑफिस में जाएगी, वो जो डॉक्यूमेंट है चेकलिस्ट, जी। वहाँ देखेंगे, वो सुधार कर देंगे जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये ओके। दिक्कत, ये सुधार हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन जैसे ही एक्सेप्ट होती है तो फिर जिस मतदान जिस दिन प्रसिद्ध होती है वो हमारे अखबार में भी वो जाहिरात आती है, तो उससे हमें पता चलता है कि भाई इस दिन हमारी मतदान में नाम आ गया है, नहीं आ गया। आप नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर मतलब बूथ पर जाके या फिर मतदान नोटरी अधिकारी के वहां जाके आप देख सकते हैं कि यस मेरा नाम आ गया है। और फिर तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं सर, आपने ऑनलाइन में भी दिखाया है कि हम सर्च कर सकते हैं अपना नाम? हाँ, वो भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। और हाँ। अगर आपको ऑफलाइन जाना है तो इस रास्ते से भी हाँ, जा सकते क्योंकि हैं। आपने पूरा ऑनलाइन मोड बताया, तो जो लोग सिर्फ ऑनलाइन जाते हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि फिर हम ऑफलाइन जाएं कोरोना पीरियड में वेरिफिकेशन के लिए, तो वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। वही वही इस वेबिनार का जो पूरा मकसद यही है कि हम ऑनलाइन ही जाए, क्योंकि ये कोरोना तो है, जी। उसको प्रिकॉशन तो रखने ही। हाँ इसके जी सर। अलावा और भी बात ऐसी है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी युग आ रहा है तो जी। हम चुनावी पंच मतलब इलेक्शन कमीशन और हमारे मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन तंत्र है वो, और हम कड़ी विधानसभा की ओर से भी यही चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ही जाए, क्योंकि जब जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो उसके तरफ से हम भी ऐसे ही जाना चाहते हैं। जी सर। जी सर, वैसे भी सर हमारा जो युवा है उनके पास काफी कुछ करने के लिए होता है कि कॉलेज भी जाएं, अपनी पढ़ाई भी करें, तो ये ऑनलाइन किसी भी समय वो कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कोई कैप है कि भाई कोई रात को इस समय ये वर्क नहीं करेगा, या पोर्टल ये 24/7 ऑन है ना? हाँ, वो अभी मैंने मेरे जो अभी आगे ही मैंने ऐसा ही बताया आपको, 365 दिन 24 बाई मतलब 24 आवर्स 7 डेज जी आप सर। मतलब हाँ, कभी कभी हमें मेंटेनेंस में साइट होती है तो आपको वहाँ मैसेज मिल ही जाता है कि मेंटेनेंस में। जी सर। तो लगभग 365 दिन वो चालू होती है, कभी भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते, ऐसा कोई निश्चित ऐसा कोई टाइम पीरियड ही नहीं है, आपको 365 दिन। जी जी सर। जी सर, आई होप अभी और कोई क्वेश्चन तो आया नहीं है स्टूडेंट्स का, इट सीम्स। स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी अदर क्वेरी, यू कैन जस्ट ड्रॉप इन द चैट बॉक्स or in the Q&A box, so that we can get answers from the persons over here, sitting over here from the collected office. In between, I invite Bhavik Gajjar sir if he has anything to say. And okay, okay sir.
सर बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड जो है हम उसमें एंटर कर चुके हैं एंड स्टूडेंट्स जो बहुत फेमिलियर हैं डिजिटल वर्ल्ड से, टेक से भी हमसे ज़्यादा बेटर हैं। और स्पेशली जो अभी 12th पास करके और अभी जो ज्वाइन किए हैं हमारे, आई थिंक दिस वाज अ वंडरफुल सेशन फ्रॉम योर एंड। आपने बहुत हमें मदद करी है और हमारे स्टूडेंट्स को कि ये इस तरीके से हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं और अपना मत का प्रयोग करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सो आई एम श्योर कि हमारे स्टूडेंट्स को भी ये बहुत अच्छे से मैसेज गया है। ये कलेक्ट्रेट ऑफिस कड़ी और मेहसाना की तरफ से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है। हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना हमें समय दिया और आपने इतना ये जो प्रयत्न किया, हमारे लिए प्रयास किया। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। और एक सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप, हमारा एक स्टूडेंट है संदीप, if you are connected, Sandeep Parmar. Sumit sir, if you can just find out Sandeep Parmar. Sandeep Parmar, if you are connected, तो आप गुजराती में जो है संविधान का जो है फंडामेंटल ड्यूटी है गुजराती में, आप प्लीज उसे बोल दीजिए तो हम वाइंड अप कर लें। और मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ फिर से एक बार कि आप लोगों ने ये प्रयास किया और बहुत संक्षेप में और बहुत अच्छे तरीके से आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड जो है बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने। तो इनको किसी को भी नाम भी चेंज करना हो या अपना नाम सर्च करना हो और कितना फीस लगता है, नए में कुछ भी नहीं लगता है, ये सारी जानकारियां हमारे को भी नहीं थी। तो ये बहुत एक अच्छा है कि हम भी किसी को ये स्प्रेड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। तो थैंक यू सो मच सर। भाभी सर आप, I'm not able to find Sandeep here. ओके, संदीप परमार इज नॉट देयर। मयंक, अगर आप गुजराती में बोलना चाहें तो प्लीज बेटा आप बोल सकते हैं एंड देन वी कैन एंड अप। मयंक पटेल, बीएससी सेमेस्टर 3 में से भी मैंने शेयर किया है ये गुजराती में। अगर कोई बोलना चाहे तो रेज योर हैंड और वो हम आपको अनम्यूट करके और पैनलिस्ट में लेके आएंगे, अपडेट कर देंगे। एनीवन पार्टिसिपेंट्स में से प्लीज आप हैंड्स रेज कर सकते हैं। आज जो हमारा संविधान जो है दिवस है। एनीवन? ओके, इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे भाभी गजर सर का, डिप्टी रजिस्ट्रार का भी, और सुमित सर का जिन्होंने हमें सहयोग दिया इस पूरे वेबिनार को होस्ट करने का, लिंक्स जनरेट करने का, और साथ ही सारे स्टूडेंट्स का जो हमारे साथ ज्वाइन हुए और जिन्होंने आज संविधान के बारे में अपनी जो मूलभूत जो ड्यूटीज हैं उसको भी उन्होंने व्यक्त किया। सो स्पेशली दर्शना, सोहम भक्ति, हर्ष, ये जो थे हमारे को इन्होंने सहयोग किया। सो थैंक यू सो मच। और मैं साथ में थैंक्स करना चाहूंगी अपने वाइस चांसलर को जिन्होंने परमिशन दिया, और हमारे जो डीन्स है उन्होंने भी क्लासेस को सस्पेंड करके, सर हमारे क्लासेस और एग्जाम चल रहे थे तो उसको भी उन्होंने सस्पेंड करके और हमारे स्टूडेंट्स को कहा, तो हम लोगों ने स्पेशली ये शेड्यूल किया। तो आई वांट टू थैंक्स माय डीन्स आल्सो एंड मैनेजमेंट आल्सो कि उन्होंने हमें बहुत ये हेल्प किया और हमने सक्सेसफुली इस वेबिनार का आयोजन किया। धन्यवाद सर आप लोगों का, थैंक यू सो मच। ऑल एंड इंद्रशील यूनिवर्सिटी और उनके सभी डीन और आप सबका भी, आपके स्टाफ का भी खूब खूब धन्यवाद, और मेहसाणा की ओर से थैंक यू वेरी मच। जी, ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर।